Hello everybody. Today we'll start a new topic, that is number system. So I've taken number line over here. एक मैंने number line ली है, and I assume that I start walking from here, point 0, that is the origin, in the right direction. As I keep on walking, what do we observe on this number line? हम क्या observe करते हैं? We'll observe there are various kinds of numbers coming. कुछ negative होंगे, कुछ fractions होंगे like this. ठीक है, there are various types of numbers coming on the number line. Can we segregate these numbers? क्या हम इन numbers को अलग-अलग way में classify कर सकते हैं? That is what we'll learn over here. Fine. So all the numbers on a number line, all these numbers on a number line, or we say this as, sometimes we also say this as a real number line. Real number line. A number line is also known as a real number line. All these numbers that come on this number line can be classified into two categories. Basically हम दो categories में इनको divide कर लेते हैं सारे numbers को. One are rational numbers, the other is irrational numbers. हमने सारे के सारे real numbers को दो categories में divide किया है. कौन कौन सी? एक है rational numbers and the other is irrational numbers. अब rational numbers में से कुछ numbers होते हैं integers, कुछ, सारे नहीं. रैशनल नंबर्स में कुछ नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, एंड इन इंटीजर्स कुछ नंबर्स क्या से होते हैं? होल नंबर्स. होल नंबर्स में से कुछ नंबर्स कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स. फाइन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच बेटर वे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन दिस एज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इट गोज ऑन. ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स. We repeat, all the numbers starting from 1 2 3 4 5 6 so on, they are known as natural numbers. अब इन natural numbers में अगर हम एक जीरो को भी ऐड कर लें, जीरो को भी मिला लें, तो वो क्या बन गया? All these numbers are now known as whole numbers. This bigger circle, you have to draw this also in your registers. Fine. So this bigger circle is the numbers of whole numbers. Whole numbers start from 0 1 2 3 4 5 6 so on. Fine. Next, whole numbers से भी एक बड़ा circle like this circle. ये कौन से numbers का circle है? They are known as integers. Integers में सारे whole numbers तो होते ही हैं, 0 1 2 3 4 5 सारे whole numbers होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होते हैं? Negative numbers are also there. -1, -2, -3, -4 so on. So I repeat, सबसे पहले हमने लिए natural numbers, start from 1 2 3 4 5 6 so on. Then natural number में अगर हम जीरो को भी मिला लें तो वो क्या बन गए? सारे के सारे whole numbers. Whole numbers में अगर हम negative numbers को भी जोड़ लें तो वो क्या बन जाता है? Integers. क्या बनता है? Integers. Next we come to rational numbers. Rational numbers are those numbers that can be expressed, जिनको हम लिख सकते हैं in the form of P upon Q. In the form of P upon Q. All the numbers that can be expressed in the form of P upon Q are known as rational numbers. For example, 1 upon 2, -3 upon 2, 7 upon 5, 19 upon 7. ये सारे क्या हैं? All these numbers are known as rational numbers. अब मैंने यहाँ लिखा है -1. क्या -1 एक rational number है? क्या -1 एक rational number है? Yes. It is a rational number. क्यों? Because -1 can be written as -1 upon 1. This is in the form of P upon Q. ठीक है? So सारे numbers जिनको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? rational numbers. ठीक है? Next, अब इन सारे numbers को अगर हम मिला लें, इन सब rational numbers को, और ये कुछ होते हैं irrational numbers, जिसमें होते हैं √2, √3, पाई, √11. कुछ हैं rational, कुछ हैं irrational. दोनों rational और irrational को मिला लें तो वो क्या बन जाता है? एक real number system. ये वाला real number system. ठीक है? We revise it one more time. सबसे बड़ा सर्कल किसका है? रियल नंबर्स. सारे के सारे नंबर्स जितने भी हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. कौन कौन सी? One is rational numbers, the other is irrational numbers. One rational, the other irrational. Rational numbers में से छोटा पार्ट किसका है? Integers. Integers से छोटा पार्ट किसका है? Whole numbers.
Whole numbers consist of what? Natural numbers. Now we'll learn one by one again and we'll try to write them in our registers. सबसे पहले natural numbers, they start from 1 2 3 4 5 6. क्या इसमें जीरो आता है natural numbers में? सोचिए, क्या natural numbers में जीरो आता है? नहीं आता है, नहीं, natural numbers में जीरो नहीं आता है. Fine. All the numbers starting from 1 2 3 4 up till it goes on till infinity. ये किसका साइन है? Infinity. This is a sign of infinity. सबसे बड़ा नंबर उसे क्या बोलते हैं हम? Infinity. So सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स यहाँ से जो जा रहे हैं, they are known as natural numbers. चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है अब आपके लिए, ठीक है? आपने मुझे बताना है which is the smallest natural number. ये सारे नंबर्स लिखे हैं, which is the smallest natural number. Yes, smallest natural number is 1. 1 is the smallest natural number. Next, what is the largest natural number? इन सब में सबसे बड़ा natural number कौन सा है? It is infinity. Very good. It is infinity. Next, we come down to whole numbers. Whole numbers. All the numbers starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, so on, up till infinity are known as whole numbers. And which is the smallest whole number? Smallest whole number. 1. गलत जवाब. 1 नहीं है. कौन सा नंबर है? It is 0. कौन सा नंबर? 0 is the smallest whole number. ठीक है? So you can write it up in your registers. Natural numbers कौन से हैं? All the numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5, so on. Whole numbers. All the numbers starting from 0, 1, 2, 3, so on. Next, integers. Integers में क्या है? Negative numbers भी आएंगे, zero भी आएगा और positive numbers भी आएंगे, या negative numbers भी आएंगे और whole numbers भी आएंगे. Whole numbers, ठीक है? सारे के सारे whole numbers and negative numbers, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? They are known as integers. It is represented by capital Z. Integers are represented by capital Z. चलिए, अब आपने मुझे बताना है स्मॉलेस्ट इंटीजर. स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा कौन सा होगा? जैसे हम -1, -2 तो नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? दे आर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. स्मॉलेस्ट इंटीजर इज व्हाट? ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. स्मॉलेस्ट, इट इज व्हाट? -infinity. स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -infinity. एंड द लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, इधर जा रहे हैं, सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा, ये कौन सा आएगा? इट इज +infinity. So हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर पता चला, इट इज -infinity, एंड द लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा आया? +infinity. चलिए अब मुझे बताइए, क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं है. 1/2 इंटीजर है? नहीं है. नो, इट इज नॉट अ इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है. दिस इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है, ठीक है? ये क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट वी कम डाउन टू रैशनल नंबर. All the numbers that can be represented in the form of P upon Q, जिनको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q, that is a denominator, cannot be equal to 0. Q 0 नहीं हो सकता है, बस. They are rational numbers. I repeat, all the numbers जिनको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? Rational numbers where Q cannot be equal to 0. चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, क्या P 0 हो सकता है? सोचिए, मैंने आपको कहा Q 0 नहीं हो सकता. क्या P 0 हो सकता है? यस, P कैन बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे. ठीक है, सपोज मैंने एक नंबर लिखा यहाँ, ये 1/2. क्या ये 1/2 रैशनल है? यस है. P क्या है इसमें? द न्यूमरेटर, दैट इज 1. Q क्या है? 2. ठीक है. 1/3. P क्या है? 1. Q क्या है? 3. 2/3. P क्या है? 2 और Q क्या है? 3. 100/99. P क्या है? 100. Q क्या है? 99. -5/6. P is -5. Q is 6. 5/-6. P क्या है? 5. Q is -6. 0. 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 can be written as 0/1. That is in the form of P upon Q, and Q cannot be equal to 0. Q 0 नहीं है. P 0 हो चलेगा, Q 0 नहीं हो सकता है. डन. सो ये क्या बन गया? एक रैशनल नंबर. नेक्स्ट, सपोज हम लेते हैं 1. 1 कैन बी रिटन एज 1/1. therefore it is in the form of P upon Q, therefore it is also a rational number. -10.
क्या -10 रैशनल नंबर है? सोचिए, -10, यस इट इज। -10 को हम कैसे लिख सकते हैं? -10/1, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q, ठीक है। अब 0.5, क्या 0.5 रैशनल नंबर है? सोचिए, 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज 5/10, विल रिमूव द डेसिमल पार्ट, 5/10 कैंसिल कर दिया, क्या आया? 1.2। 1.2 की वैल्यू 0.5 भी होती है, इसे हम 1.2 भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो 0.5 और 1/2 बोथ आर व्हाट? रैशनल नंबर्स। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है अगर P5 हो Q0 हो तो क्या वो रैशनल है? P5 है Q0 है तो रैशनल है 5/0। नो, 5/0 is not a rational number, it is what? Not defined, it is what? Not defined। यहां से कॉन्सेप्ट क्या है? Anything divided by 0 is not defined in mathematics। जैसे 2/0, 100/0, 19/0, 1/0, all these are what? Not defined। not defined का मतलब जिनको हम मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर सकते। Any number divided by 0 is not defined in mathematics। अब एक चीज और, रैशनल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Q, कैपिटल Q। फाइन, नेक्स्ट। You also know that rational numbers do not have a unique representation in the form of P/Q, where P and Q are integers। हाँ, ये जो हमने रैशनल नंबर्स पढ़े इसमें P and Q क्या हो सकते हैं? They all are integers, P and Q। P integer and Q has to be also integer, but Q cannot be equal to 0। Integers का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था। Integers क्या होते हैं? Integers include सारे negative numbers, 0 and all positive numbers, they are integers। मतलब P can take any value from negative, 0 and positive। लेकिन Q क्या हो सकता है? Q can take any negative value, any positive value, 0 नहीं हो सकता, बस 0 नहीं हो सकता। For example 1/2, 2/4, this and so on। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें सपोज हम 2/4 को कैंसिल करें, क्या ये कट हो सकता है? कैंसिल हो सकता है? सोचिए, क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? यस, किससे डिवाइड होगा ये? 2 से। सो 2 से इसे हमने कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हमने उसे कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा? स्ट्राइक है 1/2। इसको भी कैंसिल कर दिया, क्या आएगा? 1/2। 25 into 2 50, 1/2। 47 into 2 94, क्या आएगा? 1/2। सो ऐसे सारे रैशनल नंबर्स जिनकी एक इक्वल वैल्यू है, जैसे इस सब में वैल्यू क्या है? 1/2। ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट, वाई इक्विवेलेंट क्योंकि उनकी सबकी वैल्यूज इक्वल हैं, सारे के सारे रैशनल हैं या फ्रैक्शन है, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ। P/Q is a rational number where when it is represented in the form of P/Q on the number line and Q is not equal to 0, P and Q have no common factor other than 1, that is P and Q are co-prime। Co-prime। Suppose 2/3, 2 and 3 में दो नंबर्स लिए, P is 2, Q is 3। ये कोप्राइम कब हैं? ये कोप्राइम इन्हें तब बोलते हैं हम अगर इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1। पहले हम इसमें कोप्राइम नंबर समझते हैं, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। 2 and 3 क्या ये कोप्राइम है? यस, कोप्राइम है, बिकॉज 2 and 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। 3 and 6 क्या ये कोप्राइम है? नहीं, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर हैं क्या? एक 1 है, एक 3 है। दोबारा देखते हैं, एक 2, एक 8, क्या ये कोप्राइम है? दीज आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, कॉमन फैक्टर देखना है। 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, तो एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। दोबारा देखते हैं, एक 5 और एक 10 कोप्राइम है? नहीं, बिकॉज एक 1 एक फैक्टर है इनका और एक 5 भी फैक्टर है। हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, दोनों बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर ये कोप्राइम नहीं है। अब 7 and 11 क्या ये कोप्राइम है? यस, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर, दैट इज 1।
3 and 5 को प्राइम है, यस, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड इट अगेन. सो हमने देखा, so on the number line among the infinite many fractions equivalent to half, we will choose half to present all of them. मतलब इन सारे नंबर्स, ये जो हमने सारे देखे 1/2, 2/4, 10/20, दिस, हम इन सब की जगह सिर्फ अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो किसको प्लॉट करेंगे? सिर्फ 1/2 को, बिकॉज ऑल दीज आर व्हाट, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. हम इन सबको अलग अलग प्लॉट नहीं करेंगे नंबर लाइन पे, सिर्फ एक ही प्लॉट करेंगे. क्या? हाफ. मतलब ये हमने इनको कैंसिल किया, कैंसिल करके इनकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, हम इसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. चलिए अब आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताने हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सो ऑन. मैंने आपको एक नंबर दिया 5000. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर, यस, नेचुरल नंबर है. कहां से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन. क्या ये होल नंबर है? यस, होल नंबर भी है. क्या ये इंटीजर है? इंटीजर, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, ऑल दीज आर इंटीजर, यस है. क्या ये रैशनल है? रैशनल, हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. p अपॉन q, यस, इट इज अ रैशनल नंबर एज वेल. कैसे? ठीक है, सो इट इज, स्टेट वेदर इट इज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एज वेल एज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 5000 अपॉन 1. 5000 अपॉन 1. चलिए नेक्स्ट, -399. -399, सोचिए फटाफट, क्या ये नेचुरल है? नेचुरल, देखो ऐसे नहीं, नेचुरल बताओ, है नहीं है? हाँ, नहीं, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में कहां से नंबर आते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1. होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नहीं है. इंटीजर, नेगेटिव नंबर आते हैं उसमें, यस, इंटीजर है. एंड रैशनल, रैशनल है, यस, रैशनल भी है, बिकॉज हमें इसे p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो द आंसर इज इट इज एन इंटीजर एज वेल एज इट इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कैसे? -399 अपॉन 1. नेक्स्ट, हाफ. हाफ, क्या ये नेचुरल है? नेचुरल नहीं. होल नंबर नहीं. इंटीजर, इंटीजर इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. इंटीजर है? नहीं. रैशनल नंबर, yes, it is a rational number. It is in the form of p upon q, where p is 1, q is 2. 0, important. 0, चलिए, 0 नेचुरल है? 0 नेचुरल नहीं है. 0 is not a natural number. होल नंबर, yes, होल नंबर है. इंटीजर है. एंड रैशनल नंबर, रैशनल, yes, it is a rational number. कैसे आया? 0 can be represented as 0 upon 1, where p is 0 and q is 1. हमने पढ़ा था q cannot be equal to 0. q 0 नहीं हो सकता है, p 0 हो चलेगा. फाइन. नेक्स्ट, -100 अपॉन -5. पहले तो हम ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. अब करिए ना करिए कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम. अब सपोज इसको कैंसिल कर दो. लो, आपने इसे कैंसिल कर दिया तो ये बन गया 20. 5 into this 20. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. अभी आपको पेपर में बोला जाए सिंपल ऐसे, ठीक है, सिंपल ऐसे, तब आप कैसे करेंगे? तब ये क्या है? नेचुरल है? नहीं. होल नंबर? नहीं. इंटीजर? नहीं. तो क्या है ये? इट इज अ रैशनल नंबर. इट इज अ रैशनल नंबर because it can be represented in the form of p upon q. इसकी जगह अगर आपको बोलता सिर्फ 20, तो वो क्या होता? नेचुरल नंबर भी होता, होल नंबर भी होता, और इंटीजर, यस, इंटीजर भी होता. रैशनल, यस, रैशनल भी होता, क्योंकि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 20 upon 1. दैट मीन्स अगर आपसे बोला जाए 100 upon 5, तो वो सिर्फ हम लिखेंगे रैशनल नंबर. अगर बोलता इसको कैंसिल करके 20 लिखता, तब हम ये सारे नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रैशनल. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और समझ में आएगा धीरे धीरे. आर द एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर. चाहे ट्रू है या फॉल्स है, आपने अपना रीजन देना है.
why it is true, why it is false. उसने बोला every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. मतलब वो बोलना चाह रहा है आपको सारे whole number natural number होते हैं. I repeat, सारे whole numbers natural numbers होते हैं. वो बोल रहा है ऐसा. तो क्या सारे whole number natural number होते हैं? ऐसे सोचिए. उससे पहले चलो आप ये बताओ होल नंबर्स में कौन से नंबर आएंगे? होल नंबर में कौन से नंबर आएंगे? यस, 0 1 2 3 4 सो ऑन. नेचुरल नंबर में कौन से आएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2. अब वो बोल रहा है सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं. क्या ये ट्रू है? सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं. इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. Because 0 is a whole number but not a natural number, so the given statement, this statement is false statement. ठीक है? सारे whole number natural नहीं होते. I repeat one more time. चलिए मैं आपसे पूछूं, every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. सारे natural number whole number क्या होते हैं? True or false? सारे natural number whole number होते हैं. Yes, it is correct. सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. फाइन. नेक्स्ट, मैंने पूछा आपसे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सारे इंटीजर्स, वो बोल रहा है आपको कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं. तो सबसे पहले हमने सोचना है व्हाट आर इंटीजर्स एंड व्हाट आर रैशनल नंबर्स. इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स सोचिए ना, आप ब्रेन नहीं लगा रहे हैं. सोचिए व्हाट आर इंटीजर्स. सारे नेगेटिव, 0 एंड ऑल पॉजिटिव. नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q cannot be equal to 0. क्या हम -3 को p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं? -3 को कैसे लिखेंगे? -3 upon 1. -2 को -2 upon 1. इसको भी डिवाइड बाय 1, इसको भी 1 डिवाइड 1, इसको भी. सारे इंटीजर्स को हम अगर 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो वो बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सबको हम डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं. सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ टू +∞. सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव. तो हम क्या सबको डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं. तो क्या वो सारे रैशनल नंबर में बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं. तो आंसर क्या है? ट्रू. Because we can write all integers in the form of p upon q, therefore every integer is a rational number. ठीक है? Next, third part, every rational number is an integer. अब इसने उसका कन्वर्स पूछा है, जो पिछला पार्ट था. हमने पहले ये सीखना है what are rational, what are integer. हमने what are rational, all the numbers represented in the form of p upon q are known as rationals. integers सारे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव. अब क्या ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं? वो ये बोल रहा है एवरी रैशनल. वो कह रहा है आपको कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं. सारे रैशनल नंबर. क्या ये इंटीजर हैं? नहीं, दे आर नॉट इंटीजर्स. इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है? उसके एग्जांपल लिखे हमने 1 2. 3/5, 1/2 आर फ्रैक्शन या रैशनल नंबर एंड नॉट इंटीजर्स. सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते.